Okay. So today we will learn about the throws and throw keyword. These are the two keywords which is similar in terms of their name, but different in their working nature. So what are they? We will explain. So before proceeding further, I think you have now very much idea of checked exception. Now you are Yes. very much clear about the checked exception. What is checked exception? How checked exception can be reported like that. So suppose you are creating a code like class my my thr कर लिख दिया and there is a method suppose void area or something else. Now suppose there is a, a huge code written in this block and you doesn't want to handle this code through try and catch, and you have used some special classes and method in this code that can generate exceptions. मैंने कहा suppose you have written a code in this method, okay, but you didn't want to handle this code through the try and catch. Clear? Yes. You didn't want to handle this code through the try and catch. आप try और catch से इस code को handle करना नहीं चाहते, लेकिन आपने but you have used some classes that can generate or report exception. It means this program until not compiled when you haven't handled the exceptions. Means if you are not going to handle this code, then this will stopped by the compiler at the compile time, because you have written a code which consists of special classes and methods that can generate exception. जैसे कल हमने चेक्ड एक्सेप्शन में पढ़ा कि अगर आप अपने कोड में कुछ स्पेशल क्लासेस और मेथड यूज करते हो जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसे हैंडल नहीं किया, तो कंपाइलर क्या करेगा? उस कोड को रोक देगा, ब्लॉक करेगा और आपको एक मैसेज देगा कि यू हैव टू हैंडल फर्स्ट। जब तक आप इस कोड की एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तब तक कंपाइलर इस कोड को कंपाइल नहीं करेगा, है ना? I'm taking the example of checked exception. But in the case of checked exception, there is a code which can generate exception, but you doesn't want to handle this code through the try and catch. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. This is your code, a large code, but you don't want to handle this code through the try and catch. Or if you not handle this code, then compiler will stop you. देखो दो चीजें हैं, you are not want to handle this code through the try and catch. ये कौन है क्रॉस वाला? एरिस, शमसूर, Yes, sir. समझ नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है सर. एरिस, एरिस, एरिस को आवाज आ रही है मेरी? एरिस, आर यू लिसनिंग? एरिस, Yes, sir. I'm here. टाइट आ जाओ. हाँ, Mic was muted. okay. Now I'm actually asking you that are you able to understand what I'm trying to say? Yes, I am. Okay. So you have written the code, a large code, and you doesn't want to handle this code through the try and catch. If you not handle this code, then compiler will generate error.
then what will you do? Neither you want to handle this code through the try and catch, but if you not handle this code, then compiler will generate error. Then what will you do? ना तो आप try catch से handle करना चाह रहे हो, और ना अगर नहीं करोगे तो कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल ही नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर आप इफ यू डोंट वांट टू हैंडल द कोड थ्रू द ट्राई एंड कैच, देन देयर इज अ कीवर्ड थ्रोस। अगर आपको चेक्ड एक्सेप्शन से बचना है, इफ यू वांट टू ओवरकम फ्रॉम द चेक्ड एक्सेप्शन, तो आप क्या करोगे, ट्राई कैच तो लगाना जरूरी है। अगर अब तक हैंडल नहीं करोगे, प्रोग्राम आपका आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन आपको ट्राई कैच भी ना लगाना पड़े और कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल भी कर दे। ऐसा करने के लिए देयर इज अनदर ऑप्शन दैट instead of try and catch, you can use the throws keyword. Throws keyword basically used when a programmer doesn't want to handle their code through the try and catch. Then the programmer used to handle this code through the throws keyword. Now the question is that how throws keyword can be used in our program. So throws keyword can be used in the method signature. Are you aware the term of method signature? Method signature means ये जो लाइन आपने लिखी है फंक्शन वाली, इसमें जो भी चीज आएगी, पब्लिक आएगा, बिहेवियर आएगा, ये एक्चुअली कहलाता है मेथड सिग्नेचर। This line actually called as method signature. So you have to use the throws keyword in the method signature. तो आपको इस मेथड के आगे ही लिखना पड़ेगा थ्रोस। और सपोज अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन है, देन यू कैन राइट अर्थमेटिक एक्सेप्शन लाइक दैट, और थ्रोस आईओ एक्सेप्शन, और थ्रोस जो भी आप चेक में एक्सेप्शन लिखते थे वो आप किसके आगे लिख दोगे, थ्रोस के आगे। Then what is the benefit of that? Your program will compile without using try and catch. So throws is the keyword which is used in the method signature for handling the exception. ये समझ आ गया? Yes, sir. लेकिन इस केस में अब यूजर डिफाइंड मैसेजेस नहीं होंगे जो आप कैच में लिखते थे, लेकिन आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, आप उसे प्रॉपरली हैंडल कर लोगे, और ना ही कंपाइलर आपके प्रोग्राम को अब स्टॉप करेगा, रोकेगा नहीं, वो कंपाइल होने देगा। ठीक है, तो मेथड के आगे ही हम लिख देते हैं थ्रोस एक्सेप्शन। अब इस कोड के लिए मैं कोड बनाना शुरू करता हूँ। जैसे चेक एक्सेप्शन का मैं कोड लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट जावा। देखो एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो लोग कल नहीं थे उन्हें मैं इसमें एक बार मुझे चेक एक्सेप्शन को दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप फिर से देख लो कि चेक एक्सेप्शन कैसे आती है। तो देयर इज अ ऑप्शन अगेन दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज चेक एक्सेप्शन एंड हाउ इट कम्स। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, इंपोर्ट कर लिया java.io बिकॉज आई वांट टू यूज द बफर रीडर क्लासेस। तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल इसे हटा दे रहा हूँ ना, हैव यूज बफर्ड रीडर। स्पेलिंग बस चेक करते रहना, br is equals to new, ये सब हो चुका था कल हमारा। रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक, अब मैंने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर value for m। now I'm receiving the value in the string। मैं दोनों जो कल मैंने लिया था, पहले मैंने क्या करा था, string के वेरिएबल में I have received the value from the buffer reader like that, buffer read line, and after that I have change the type of the value like this statement। ये सारा कल हो चुका था, integer dot parse int।
So first you receive whenever every time in Java when you receive the input through Java, then always the type of the value should be in string. But for your calculation you need integer value, then you have to change the type of this value. So you can change the type of value from string to integer, then you have to use wrapper classes, which I've already told you in the last lecture. इस पूरे स्टेटमेंट को अब मैं नेक्स्ट लाइन में एक साथ लिखूंगा. अब मैंने लिखा सेकंड, एंटर वैल्यू फॉर n. अब इसके लिए मैं एक साथ लिख रहा हूं int b int m int n is equals to integer dot pass int br dot read line. ये बताना मेरे को, स्टेटमेंट समझ आ गया आपको? यहां मैंने इस स्टेटमेंट को दो पार्ट में लिखा है. Here I have written the statement in the two parts. Here first receive the value in the string, then I have converted into integer. Yes, sir. Here I have written in the single statement. I have combined these both the statement into the one statement. From here you have received the value in string as you received in the S1. From here you receive the value in the string, and then the string is converted into the integer. So these two statement now converted into the one statement. So either you can write code like that or you can write the code like that. The receiving value and conversion of that value. ये समझ आ गया आपको? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. पुनीत. Yes, sir. Yes, sir. सुरजीत. सुरजीत देखो, सुरजीत गायब हो गया. सर यहाँ वन कंफ्यूजन है सर. आपने रुको, पहले मैं देख लूं है कौन कौन. नवनीत, शुभम, यश. यश कहाँ गया? यश गायब. विनीत ठाकुर गायब. Yes, sir. अच्छा ठीक है. अनिरुद्ध तो होगा. Yes, sir. हाँ. और कौन है? ये कौन है? 19 MCA 8212. Shubham Vyas. यस सर. हाँ, बेटा बने रहो यहाँ पे. अब बने पड़े हैं. हाँ, तो जब मैं बोला करूँ तो सारे लोग बोला करो यस. ये लाइन आपको समझ आ गई? देखो यहाँ मैंने वैल्यू रीड की, रीड लाइन से, बफर के ऑब्जेक्ट से रीड करके मुझे वैल्यू मिलती है स्ट्रिंग में. मैंने पहुंचा दी स्ट्रिंग में. उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में. Okay. यहाँ मैंने दोनों काम एक साथ कर दिए. इस स्टेटमेंट से वैल्यू रीड हो रही है, रीड करके मैंने पार्सेंट में डाल दिया. यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगी स्ट्रिंग में मिलेगी और वो उसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में. सो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ना? हाँ. ओके. जावा में जब भी इनपुट से वैल्यू लेते हो, याद रखना, whenever you receive the value through input in Java, it will always in the string format. ठीक, कभी भी इनपुट लो, चाहे वो स्कैनर से लो या बफर रीडर, किसी भी क्लास से लो, कैसे भी, जब भी आप इनपुट रिसीव करोगे जावा में, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होगा. अगर आपको अपने काम को स्ट्रिंग में करना है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई काम न्यूमेरिक में करना है, इंटीजर में, तो आपको उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर में. तो पहले फर्स्ट यू हैव टू रिसीव द वैल्यू, देन यू हैव टू नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू. हियर दोनों काम एक साथ. ये सर पार्स इंट क्या है? पार्स इंट कल मैंने बताया था कि मेथड है क्लास इंटीजर का. ये इंटीजर क्लास है और ये डेटा टाइप्स है. दिस इंट इज डेटा टाइप बेसिकली एंड दिस इंटीजर इज अ क्लास. इट्स कॉल्ड रैपर क्लासेस. ये कल मैंने पूरा समझा दिया. सर आपने इसमें ऊपर लिखा int m equals to integer dot parse int s1. ठीक है. फिर नीचे लिखा आपने int n integer dot parse n और इसको रीड लाइन, मतलब जो रीड लाइन स्ट्रिंग s1 थी उसको दोबारा, ये तो सेम ही चीज नहीं होगी नीचे? हाँ, तो वही मैं वही तो कह रहा हूँ. चाहे आप ऐसा लिखो, देखो इसमें एक m की वैल्यू आएगी, उसके लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे वो दूसरी वैल्यू इनपुट करेगा, मैंने ऐसे लिख दिया.
मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चाहे आप दो स्टेटमेंट लिखो रिसीव और कन्वर्ट करने के, या इसको एक ही लाइन में लिख के बना लो, काम दोनों एक ही है। ओके भाई अगर सुनो ये ऐसा है, इट इज जस्ट लाइक दैट। सपोज आप यूज कर रहे हो सी, पहले आपने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करो, और उसके बाद आप सी को प्रिंट कर रहे हो। ये दो काम है, मैंने एक साथ ही कर दिया। प्रिंट में अगर मैं करूं ए प्लस बी, तो यहां भी वही काम हो रहा है और इन दोनों लाइन से भी वही काम हो रहा है। सर ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ओहो, इसमें ना समझ वाली कौन सी बात है, ये तो बहुत आसान है। आपको काम दोनों में सेम हो रहा है, इस दो लाइनों में भी वही काम हो रहा है जो इस एक लाइन में काम हो रहा है। ओके सर समझ आ रहा है सबको? सर इसमें Yes, सिर्फ sir. आपको ये बताया गया है कि आप दो लाइन मत लिखो, ये जो दो लाइन आपने पहले लिखी समझने के लिए, उसके बाद आपने कोड को शॉर्ट करके एक ही लाइन में दोनों काम कर दिए। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ। वीडियो मोड चला गया आप लोग का, वापस लेके आओ। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आपने किया int k is equals to m into n. Now system dot out dot print area is equals to plus k. ये आपने बना लिया। अब इसे कॉल करने के लिए I am writing here main class call thr public static void main string mca। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो my thr का, my thr। now you're creating the object m1 new my thr properties sync। now you have creating the object of class my thr। after creating the object of my thr, you can call the method is your area of buffer reader class, so you can call the method through the object m1। here you can call like that। now you're calling the method, got it? Yes, sir. समझ आया Yes, आपको? Yes, sir. ठीक है, अब जब आपने कॉल कर लिया इसे, now you need to compile it। फिर से एक बार कोड समझ लो। here you have imported java.io, now class mythr, you have written the method void area buffer reader, taken the value for m, converted into the string and converted into the integer। now you have received the value for n, converted here, calculated here, printed here। now you have called this method, but this program will not compile because of checked exception। let me show you। now save it, save this program by my thr dot java, right? compile it, go into the directory, now cd summer 2020 java c my thr dot java। first we have to check if there is any syntax error, then we can remove it, we will remove it। if there is no syntax error, then it will produce warn error for the checked exception। here there is a syntax error, new input stream reader, check this line, new input, there should be input। input now program is okay, now it's giving the checked exception, code is perfect, code is fine, everything is fine, but this is producing the checked exception that your code is until not going to compile until you haven't handled it। this code is must be caught or declared to be thrown।
देखो अब वो कह रहा है कि ये इस कोड को कंपाइल नहीं करेगा प्रोग्राम के कंपाइलर। कोड आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने इस कोड में, ये कोड आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इस कोड में ऐसे क्लासेस यूज कर रहे हैं दैट कैन जनरेट एरर, सो दिस कोड इज नीड टू हैंडल फर्स्ट, दिस कोड इज नीड टू हैंडल फर्स्ट। ये समझ में आ गया? कल वाला आ गया, देखो जो चेक्ड एक्सेप्शन था। यस सर। हाँ, उसने चेक्ड एक्सेप्शन दिखा दिया। अब आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू मस्ट हैंडल इट, बट माय क्वेश्चन इज दैट you doesn't want to handle through the try and catch. Then what will we do? You have two options. Either you have to put it all the code into the try block, or but if you don't want to use a try, then what will you do? You have to use throws. Throws, suppose, exception. Clear? Yes sir. Now, again in the main where this code is going to call, here you have to also handle throws exception. Now recompile it. Now see, your program is got compiled. प्रोग्राम कंपाइल हो गया आपका। Yes sir. ये था यूज किसका? थ्रोस का। True. तो जब भी चेक्ड एक्सेप्शन के केस में जहां कंपाइलर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, बिल्कुल आपने सही कोड लिखा है, उसके बाद भी कंपाइलर इज नॉट अलाउइंग योर कोड इन द फर्दर स्टेप, मींस योर कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू कंपाइल योर कोड इवन योर सिंटैक्स इज वेरी करेक्ट। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन के केस में वो कहता है कि आपने, क्योंकि बिकॉज यू हैव यूज्ड सम क्लासेस और मेथड दैट कैन जनरेट एक्सेप्शन, सो यू हैव टू फर्स्ट हैंडल इट, अदरवाइज यू कैन कंपाइल। अब इस केस में दो चीजें हैं, या तो आप ट्राई कैच से इसे हैंडल करो तो भी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज द ट्राई एंड कैच, देन डोंट वरी, यूज ऑफ थ्रो इन द मेथड सिग्नेचर। आप थ्रोस का यूज कर सकते हो मेथड सिग्नेचर में। जो भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है जी, लेकिन अगर आप भूल गए तो खाली एक्सेप्शन से भी काम चल जाएगा। तो जहां दो जगह लिखना पड़ता है, जहां आपने मेथड बनाया है उस मेथड सिग्नेचर में, और वेयर यू आर कॉलिंग दिस मेथड, तो उस मेथड के आगे भी आपको लिखना पड़ेगा थ्रो एक्सेप्शन। क्लियर हो गया? अगर ये कोड आपने पूरा मेन में लिखा होता, सपोज इफ यू हैव रिटन दिस कोड इनसाइड द मेन, तो सिर्फ आपको मेन में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दो बार है, एक तो वो फंक्शन के अंदर आपने लिखा है, और दूसरा उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। तो जहां लिखा है उस फंक्शन को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, और जहां इस फंक्शन को कॉल करा रहे हो वहां भी इसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये यूज था थ्रोज कीवर्ड का, कि कैसे आप इसे हैंडल कर सकते हो एक्सेप्शन को। क्लियर हो गया? Yes sir. तो थ्रोज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि थ्रो कीवर्ड का यूज कैसे। ये थ्रोज का था, अब नेक्स्ट देखेंगे थ्रोज कीवर्ड का यूज, थ्रो का।